بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام۔ دوستو، جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو دنیا کا بچہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب دنیا کے کسی بھی انسان سے جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں گے تو وہ آپ کو ضرور جواب دے گا کہ بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہو، کیونکہ دنیا کی ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی طرح سے جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے کاموں کے حساب سے جنت یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہبوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے جاتے ہیں۔ مگر دوستو، شاید آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں دو جنتوں کا خیال آتا ہے۔ ایک جنت وہ جو مرنے کے بعد اچھے کام کرنے والے انسان کو ملے گی، اور ایک وہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے اس دنیا میں ہی ہوا کرتی تھی۔ ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، ہماری اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوا کرتی تھی جس کو ہماری دنیا میں ہی رہنے والے ایک بادشاہ جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے بنوایا تھا۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ شداد کون تھا، کس دور میں ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دنیا کے کس علاقے میں اس کا حکومت ہوا کرتا تھا، اور آخر کس طرح سے جنت جیسی ایک محل ہماری اس دنیا میں ہی بنوانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی ساری چیزیں آج کی اس تحریر میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر بعد میں شداد کے نام اس بادشاہ کا اور اس کی بنوائی ہوئی اس جنت کا کیا بنا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج کی اس تحریر میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنوائی ہوئی اس جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹس شداد کی بنائی ہوئی اس جنت کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ تو چلیے آج کی ہماری اس تحریر میں بنے رہیے، کیونکہ آج کی یہ تحریر حد سے زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں احقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلے کو حقب کہا جاتا ہے، اور اس لیے حقب کا ہی مطلب ہوتا ہے احقاف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے اور اونچے ریت کے ٹیلوں کی جگہ آپ کو بتاتے چلیں۔ احقاف کا یہ ایریا آج کے دور کے یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ دوستو، قوم عاد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار گزر رہی تھی، جو کہ ان کے پاس ہریالی تھی، اچھا پانی تھا اور کھانے کو بھرپور خوراک تھی۔ اس کے علاوہ جانور ہوا کرتے تھے اور جو کچھ بھی اس دور میں ضروری تھا سب کچھ ہوا کرتا تھا، مگر آسانی کے ساتھ ملنے والے ان بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ ان کو نافرمان بنا دیا، اور یہ لوگ اب اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام حضرت ہود ہوا کرتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی، بلکہ وہ تو ان کا الٹا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی دور میں ہی اس پوری قوم کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شداد ہوا کرتا تھا۔ دراصل شداد کا ایک بڑا بھائی اور بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام شدید بتایا گیا ہے۔ پہلے وہی اس سلطنت کا حکمران ہوا کرتا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اس سلطنت کو شداد نے سنبھال لیا۔ شداد کی حکومت یمن اور عمان کے علاقے سے لے کر ایران تک ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنسز اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سلطنت عراق سے بھی آگے تھی، یعنی ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ فی الحال حضرت ہود علیہ السلام نے دوسرے عام لوگوں کی طرح شداد کو بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر شداد نے بھی ان کی ایک نہ سنی۔ آخر کار ان دونوں کے بیچ بحث ہوئی اور شداد نے ان سے پوچھا، اگر میں تمہارے اوپر ایمان لے بھی آؤں اور تمہاری بات مان بھی لوں تو اس بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے بدلے میں تمہارے اوپر جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس جنت کی تم بات کر رہے ہو یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اتنی کہ جس جگہ کو ارم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ شداد نے جنت بنانے کا یہ فیصلہ کرتے ہی اپنی سلطنت کی الگ تھلگ علاقوں میں بیٹھے ہوئے گورنروں کو بھی یہ آرڈر دے دیا
कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फ़ौरन सवारियों पर भरवा कर मेरे इस इलाके में भेजना शुरू कर दें कि यहाँ पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले इतनी गहरी बुनियादें खोदी गई कि पानी के लेवल तक पहुँच गई थी। इसके बाद इन बुनियादों को संगे सुलेमानी के ज़रिए से भर दिया गया। जब ये बुनियादें अच्छे तरह से ज़मीन के लेवल तक तैयार हो गई तो इसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के ज़रिए से दीवारें खड़ी कर दी गई। इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई। सुबह में जब सूरज निकला करता और अपनी रोशनी दीवारों पर डाला करता तो किसी भी इंसान के लिए अपनी नज़रें इन दीवारों पर जमाए रखना मुश्किल होता, और इसी तरह से ही जन्नत की दीवारें कंप्लीट हो गई। इसके बाद इन 4 दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनवाए गए और हर महल के 1000 पिलर के ज़रिए से बनाया गया। इनमें से हर पिलर के ऊपर बेइंतहा हीरे और जवाहरात जड़े गए। इस जन्नत के बीच में एक बड़ी सी नहर भी बनवाई गई और इसके बाद इस बड़ी सी नहर से बहुत सारी छोटी छोटी नहरें भी काटी गई थी। ये सारी वो छोटी छोटी नहरें थी कि जो हर महल से हो गुजरती थी। हौज़ और फुआरे जैसी चीज़ों की भी कोई कमी बाकी नहीं रखी गई। नहरों के किनारे पर बहुत सारे बनावटी यानी आर्टिफिशियल दरख्त भी लगाए गए थे। इन आर्टिफिशियल दरख्तों की जड़ें सोने की हुआ करती थी, जबकि मोती और याकूत जैसे हीरों को लाकर इनके ऊपर भी लटकाया गया। शद्दाद के इस ख्वाबों की जन्नत में इस शहर में मकानों और दुकानों की दीवारों को मुश्क ज़ाफ़रान और अंबर और गुलाब के ज़रिए से मुअत्तर किया गया और याकूत और मरजान की मदद से आर्टिफिशियल यानी नकली परिंदे बनाकर चांदी की ईंटों से बनी हुई दीवार पर भी रख दिए गए थे, जो देखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत लगा करते थे। शहर की तामीर मुकम्मल होते ही ये ऑर्डर जारी कर दिया गया कि सब जगह पर रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। जो नहरें मौजूद थी इनमें से किसी के अंदर तो मीठा पानी, किसी में दूध, तो किसी में शहद और किसी में शराब डाली गई। शद्दाद की ये जन्नत लगभग 12 सालों के अंदर बनकर तैयार हो गई और तैयार होते ही शद्दाद ने फ़ौरन अपने सभी दौलतमंद वज़ीरों को और दूसरे गवर्नरों और हुक्मरानों को ये ऑर्डर दिया कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। इसके बाद वो खुद भी अपने पूरे लश्कर के साथ यानी अपनी पूरी टीम के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ निकल पड़ा, ताकि पहली बार अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शान और शौकत के साथ एंट्री ले सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफ़र कर रहा था तो इसके साथ बहुत सारे आलम और हदायत करने लोग भी थे और वो रास्ता पर बार बार इन लोगों का मजाक भी बना रहा था और इनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे, अपनी जन्नत के लालच में ही दूसरे खुदा के सामने झुकने के लिए कहा करते थे कि जिस जन्नत को तो मैं खुद दुनिया में ही बना चुका हूँ। अब तुम लोगों को भी मेरी शान और शौकत और ताकत का अंदाज़ा हो चुका होगा। दोस्तों, ये वो दौर हुआ करता था कि जब दुनिया के इंसानों की उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी हुआ करती थी। खुद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र भी 1000 साल से ऊपर थी। इसलिए इनको भी बहुत काबिल और समझदार लोगों की तरफ से ये मशवरा दिया गया था कि तुम भी होना बहुत लंबी उम्र पाओगे, अभी तो तुमको इस दुनिया में बहुत सा ज़िंदा रहना है। बस इसी उम्मीद के साथ ही अपनी जन्नत की तरफ बढ़ रहा था कि अपनी मौत से पहले का एक लंबा दौर अब ये इसी शहर में काटेगा। ये जैसे ही शहर के करीब पहुंचा तो शहर के सारे लोग पहले ही इसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आ चुके थे और इनके ऊपर हीरे जवाहरात को निछावर कर रहे थे और ये भी अपनी पूरी शान शौकत और गुरूर व घमंड के साथ शहर की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही ये अपनी जन्नत यानी अपने इस शहर के बिल्कुल इस दरवाजे पर पहुंचा और दाखिल होने की कोशिश ही कर रहा था, वैसे ही इसको अपने रास्ते में एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। अपने रास्ते में खड़े हुए इस अजनबी इंसान को देखकर शद्दाद ने बड़ी हैरत से, क्या खैर तो है? कौन है? इस पर जवाब मिला कि मैं मुल्कुल मौत हूँ, यानी कि मौत का फरिश्ता। शद्दाद ने पूछा, आखिर तो क्यों आया है? जवाब मिला, तेरी रूह कब्ज़ करने आया हूँ, यानी कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। इस पर शद्दाद ने कहा, कम से कम मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं अपनी बनाई हुई इस जन्नत को देख सकूँ। इस पर जवाब मिला कि खुदा की तरफ से मोहलत नहीं है, लिहाजा इसको फ़ौरन बाद शद्दाद की रूह कब्ज़ कर ली गई। जिस वक़्त शद्दाद की मौत हुई इस वक़्त इसका एक पाँव रकाब में जबकि दूसरा हवा में ही था।
यानी वो अपने घोड़े से ठीक तरह से उतर भी नहीं पाया था और अपने कदम अपनी जन्नत की चौखट पर रख भी नहीं पाया था। इससे पहले ही वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इसके बाद मशहूर फरिश्ते यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी होलनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये आलीशान शहर अपनी पूरी शान और शौकत और सोने चांदी और हर चीज़ के साथ रेत के रेगिस्तानों में और मट्टी में इस तरह से मिल गया कि मानो यहाँ पर कोई ऐसा शहर हुआ ही नहीं करता था। दोस्तों, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। दिन महीने में बदले, महीने साल में बदले और साल सदियों में बदल गए और फिर सदियों हज़ार साल में बदल गई। फिर एक दौर ऐसा आ गया जब ना तो इसकी जन्नत के बारे में हमारी कोई दुनिया का इंसान जानता था और ना ही शदाद के बारे में, मगर हज़ारों साल के बाद अचानक से दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस जन्नत की तरफ उस वक्त गया जब कुरान में इस जन्नत का जिक्र आया। हाँ दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले शदाद नाम के बादशाह की तरफ से बनवाई गई ये खूबसूरत और आलीशान जन्नत का जिक्र मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में मौजूद है। लेकिन कुरान में आने के बाद भी सिर्फ इस्लाम मज़हब को फॉलो करने वाले लोग ही इसको पूरे कॉन्सेप्ट पर यकीन रखा करते हैं, यानी इस बात पर यकीन रखा करते थे कि कोई शदाद हुआ करता था जिसने ऐसी जन्नत बनाने की कोशिश की। मगर मुसलमानों के अलावा दुनिया के दूसरे आम लोग इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखा करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है इन सब चीज़ों पर यकीन रखने के लिए बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस होना भी ज़रूरी हैं। मगर दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त हैरान रह गई जब 1951 और 52 के करीब एक लॉजिकल टीम अमान और यमन के इस पूरे इलाके में इस शहर को ढूंढने में कामयाब हो गई कि जहाँ पर किसी दौर में ये शहर यानी ये जन्नत बनाई गई थी। आपको बताती चलूँ कि आप लोग भी इस शहर के बारे में गूगल पर इरम सिटी लिखकर पूरी तरह से सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि शदाद की बदाई हुई इस जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा पिलर्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कौम आद के जो लोग हुआ करते थे वो हद से ज़्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े हुआ करते थे और वो पिलर बनाने में माहिर समझे जाते थे। इसके अलावा कुरान में भी इस शहर का जिक्र इरम ज़ातुल अमाद कहते हुए ही किया गया है। आज की कहानी कैसी चलेगी कमेंट में बताइए।